And getting you more information as far as the carnage in Pahalgam is concerned. It's been 2 days after terrorists opened fire on tourists in Pahalgam. Another horrific video of the attack has surfaced. The video shows the brutality of the terrorists. They forced the tourists to bow their heads and then shot at them. Terrorists rounded up tourists and gunned them down and even chased them. A group of armed men in camouflage clothes emerged from a nearby forest. Attackers opened indiscriminate fire at Baisaran Meadow, a scenic uphill area accessible only by foot or pony rides. Many tourists were caught off guard as a sudden volley of bullets rang out. We are right now on the Baisaran track. This is at least 3 to 4 kilometers of very hard, treacherous trek, steep slope that takes you to Baisaran. Now, first I'll tell Muzaffar to show you. This is the track. In fact, behind me you can see the kind of track, the kind of topography, and it is through this is treacherous track that the other day tourists came rushing down, and then the locals, the Ghodewalas, the first responders, many injured were brought down on their shoulders. So one can imagine the kind of scenes that would have unfolded. Absolutely tragic. Yesterday we went in there, we found boots, we found chappals that were stuck in mud, and were basically speaking about the scenes, the mayhem that broke loose that day as the tourists came in. Now we have with us the first responders, the unsung heroes of this tragedy. Mr. Abdul Wahid, the first video that went viral, he was the person who arrived there. His name, one of the persons is trying to calm the tourists, the people who were the relatives of the people who died, and they were absolutely distraught. They were in shock psychologically. They had absolutely no idea what had hit them. So he was the first person who reached there, and in fact then he sent an SOS to all others, including ATV walas, pony walas, and told them to really rush to the location so that lives could be saved. Wahid साहब, सबसे पहले आपसे पूछेंगे, क्योंकि ये ऐसी दहशत वाली इंसिडेंट था जब आप वहां पहुंचे और जब आपने वहां देखा, तो क्या आपके जहन में पहले आया? क्योंकि आसान नहीं है, आपने अपने जो जिसको कहेंगे वाइल्डेस्ट ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ आप देखेंगे यहाँ। पहले मेरे जहन में आया कि मैं इधर से वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस वही हालत वहाँ पे थी बाइसरन में। लाशें पड़ी हुई थी, जख्मी थे, वो चिल्ला रहे थे। तो मैंने उसके बाद में पहले कोशिश की है कि जख्मियों को मैंने पानी पिलाया, और उसके बाद में अपने ग्रुप में मशे डाली है कि आप यहाँ पे आइए, हम जख्मियों की मदद करेंगे, क्योंकि डेड बॉडी जो भी थी वो पड़ी हुई थी। एक आदमी मैं इधर से उधर क्यों जा रहा था, एक आदमी न जख्मी को संभाल सकता था और न वो डेड बॉडी को संभाल सकता था। इसीलिए मैंने कोशिश की, मैं जिस तरह आपने देखा है वीडियो में, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, मैंने कोशिश की कि यहाँ पे और लोग आ जाए, इनको हम मदद करेंगे। जो ही मैंने मैसेज डाली तो 10-15 घोड़े वाले आए, उसके बाद पुलिस भी आया है। तो मैंने कोशिश की, जो जख्मी थे मैंने उनको घोड़े पे, कंधों पे और चारपाई पे बिठा के नीचे रेफर किया हॉस्पिटल। जब हम भी वहां गए, रास्ते पे चप्पलें थी कीचड़ में, और साफ बयां कर रही थी कि किस तरीके के सीन्स उस वक्त होंगे। तो वहां से जब आप भाग के आए, उस रास्ते पे या इस रास्ते पे चलना मुश्किल है, स्लिप है, तो दौड़ना कितना मुश्किल था, और कंधे पे लेके ऐसे जख्मियों को लाना कैसे कर पाए, और कितने लोगों को जो है आपने बचाया? एक वीडियो भी आया है जिसमें एक जो घोड़े वाले के कंधे पे एक टूरिस्ट को जो है जख्मी को ला रहा है। जो ही मैं पहुंचा, जिसके कंधे पे वो जख्मी है, वो मेरा भाई है, वो मेरे ही साथ चले थे पहले मैं जहां पहुंचा हूं। तो हमने यही कोशिश की कि चाहे हम जख्मी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एज इंसानियत हम किसी का जान बचाए। जिसकी डेड हुई थी उसकी हुई थी, मगर जो जख्मी थे, हमारे ये जहन ये नहीं मानता था, हमारा ज़मीन नहीं मानता था कि आप जख्मियों को ऐसी हालत में डालो। हमने कोशिश की, चाहे हमको जख्म लगे, हमको कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम इसको अस्पताल तक पहुंचे, सबसे पहले हमने, हमारी कोशिश रही है। और बात, तो कितने जख्मी आपने जो है उतारे? हमारे मैंने लगभग 10-11 को घोड़े पे बिठाया और कंधे पे भी बिठाया और चंदर चारपाई पे भी बिठाया, जो पहलगाम हॉस्पिटल। तो कितना टाइम फिर आपको लगा नीचे आते आते? उनको ज्यादा से ज्यादा उधर से लगभग 25 मिनट हमको नीचे आने में लगता है। उसने 20 मिनट दिया, क्योंकि वो जल्दी आए थे, क्योंकि उनका खून बह रहा था। जी। तो जब आप वहां पहुंचे, अभी गोली चल रही थी या गोलियां खत्म हो गई थी? और जब आपने आसपास
देखा तो चारों तरफ लाशें थी। जो ही मैं वहां पहुंचा तो जो इंसिडेंट जिन दरिंदों ने किया था तो वो इख्तिताम पजीर पूरा हुआ था, क्योंकि वो भाग गए थे। ना मुझे फिर गोली की आवाज़ सुनाई दी गई क्योंकि वो इख्तिताम पजीर हुआ था, मगर वहाँ सदमा था, पूरा मातम छाया हुआ था, लाशें पड़ी हुई थी, कोई आदमी नहीं था, चिल्ला रहे थे औरत लोग। तो मुझे उस सदमे से बहुत सदमा लगा मुझे। Or the locals there just narrating on what they did at that point in time to help the people, help the tourists. I'm going to go straight across to Arvind for more details on that story. My colleague Arvind is on his way to Pahalgam, but that massacre is taking place. Arvind, ये वीडियो भी हम अपने व्यूवर्स को दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये दिखाता है कि वो कैसे अनसस्पेक्टिंग टूरिस्ट थे, वो घास पर वहाँ बैठे हुए थे और ये टेररिस्ट आता है और उन पर शूट करता है। आपने ये भी बताया पहले कि कई टूरिस्ट को जो है पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा गया है। देखिए, जो टेररिस्ट होते हैं खास तौर से पाकिस्तान के, आपने हाफिज सईद को सुना होगा और बाकी टेररिस्ट को, वो बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं कि जो इंडियन आर्मी है उससे वो लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये देखिए, अगर वीडियो में आप देखेंगे तो ये कायरो वाली हरकतें हैं, जिसमें जो निहत्थे टूरिस्ट हैं उन पर गोलियां एक टेररिस्ट बरसा रहा है। जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका कहना है कि जो भी टेररिस्ट है वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, लेकिन ये एक बात क्लियर है कि उसमें से ज़्यादातर 4 के लगभग टेररिस्ट है, उसमें ज़्यादातर जो पाकिस्तानी मूल के टेररिस्ट हैं वो है। अगर आप वीडियो देखें तो वीडियो में काफ़ी क्लोजली जाता है टूरिस्ट के और उसके बाद जो टेररिस्ट है वो फायरिंग करता है। दरअसल जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं वो बताते हैं कि प्रॉपर इस पूरे इलाके की रेकी की गई, टूरिस्ट आते हैं, उसकी जानकारी टेररिस्ट ने उठाई। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच पहलगाम में जो ग्रुप ऑफ टेररिस्ट थे उन्होंने प्रॉपर रेकी की है। उनको ये जानकारी थी कि यहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये टेरर अटैक को अंजाम दिया। और उसमें अगर आप देखें तो जब टेररिस्ट आता है तो जो कुछ टूरिस्ट ग्रुप ऑफ टूरिस्ट होते हैं वो नीचे की तरफ बैठते हैं, उन पर फायरिंग करता है। घूम घूम कर ये टेररिस्ट फायर कर रहे थे। जो इंडिया टुडे के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें पहलगाम में उस 22 अप्रैल को जो टेरर अटैक हुआ था उसका वीडियो है, जिसमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से टेररिस्ट जो निहत्थे टूरिस्ट हैं उनको उन पर गोलियां बरसा रहे हैं। इसके बाद जो टेररिस्ट है, जब उनको ये क्लियर हो गया कि यहाँ से आसपास से कोई रिटेलिएशन नहीं आ रहा है, कोई सिक्योरिटी एजेंसीज नहीं है, उसके बाद उन्होंने बाकायदा लोगों से बातचीत की, उनकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश की, उनका नाम पहचान पूछा। उसके बाद पॉइंट ब्लैंक रेंज से भी गोली मारी है। लेकिन इस वीडियो से एस्टेब्लिश्ड होता है कि कैसे टेररिस्ट निहत्थे लोगों को गोली बरसा रहे थे। ट्रेंड ये टेररिस्ट थे पाक से रिलेटेड। और जो FIR भी लॉन्च हुई है इस इंसिडेंट के बाद, उसमें भी लिखा हुआ है कि जो टेररिस्ट थे वो सीमा पार के जो उनके आका है उनके इंस्ट्रक्शन पर ये लगातार काम कर रहे थे। अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में चल रहा है। लेकिन ये वीडियो ये एस्टेब्लिश करता है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में क्या हुआ था। स्नेहा। Arvind Oja, getting in those details, I'm going to thank you for the moment. Arvind on his way to Pahalgam to report on that big story that we are tracking very closely.